Hello everyone. So this is the fifth part of our video of 10th class under the chapter life process. Today we'll discuss about the next topic, that is heterotrophic mode of nutrition. Right? So in the previous class we have talked about the autotrophic mode of nutrition. Now what is heterotrophic mode of nutrition? Heterotrophic mode of nutrition, in this the organisms are depend on others for their food. As the name suggests, hetero means different, trophic means nutrition, means the organism is taking nutrition from different organisms. So those organisms which show this heterotrophic mode of nutrition, those organisms are called heterotrophs. I am using the shortcut here, but you have to write in your notebook properly. Fine. So those organisms are called heterotrophs. Now this heterotrophic mode of nutrition is divided into further types. Like in autotrophs also we have said that autotroph is either photoautotroph or chemoautotroph. Similarly, heterotroph is also of different type. It is divided into three types. The first one is called saprophytic mode of nutrition, or the organisms are called saprophyte. It includes those organisms which take their nutrition by breaking down the organic matter such as decay matter. We can say कि हमारे घरों का जो भी वेस्ट मैटर होता है उसे हम बाहर फेंक देते हैं सॉइल में, और सॉइल के अंदर आपने देखा होगा कि आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों के बाद, दैट वेस्ट मैटर गेट डिग्रेडेड बाय इटसेल्फ. सो वहां पर आपके जो इन्वॉल्व होते हैं वो सैप्रोफाइट्स होते हैं. वो सैप्रोफाइट्स वो ऑर्गेनिज्म है जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, उनको ब्रेक करते हैं, उनको तोड़ते हैं और उन पर आपका फीड करते हैं. फिर यहाँ पर आपका क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं उसे आउटसाइड एनवायरमेंट. जैसे खा तो हम भी ऑर्गेनिक मैटर ही रहे, हम भी कार्बोहाइड्रेट को मीन्स ब्रेक करते हैं और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, प्रोटीन खाते हैं, फैट खाते हैं, तो डाइजेशन से हम भी ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक कर रहे हैं, बट दे आर ब्रेकिंग द ऑर्गेनिक मैटर इन आउटसाइड एनवायरमेंट. Fine. And how they are doing that? They are doing that by releasing enzymes. कि कुछ enzymes secrete करते हैं, and these enzymes they act on the organic matter. They act on the organic matter and break down that organic matter into simple nutrient which is absorbed by these organisms. So if in brief I have to draw this by a chart, what is going to happen, that saprophytes they release certain enzyme and these enzymes are breaking the organic matter. These enzymes are breaking the organic matter into simple nutrients, and these nutrients are now absorbed by these are now absorbed by these saprophytes. So this is how the saprophytes
आर इन्वॉल्व इन ब्रेकिंग द ऑर्गेनिक मैटर. फाइन. नाउ यहाँ पर देखो अब सैप्रोफाइट अपना न्यूट्रिशन ले किससे रहे हैं, दूसरे ऑर्गेनिक मैटर से ले रहे, खुद तो अपना प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं. तो ये ऑर्गेनिक मैटर में आपका प्लांट वेस्ट हो सकता है. तो इस ऑर्गेनिक मैटर में हम कह सकते हैं क्या है, प्लांट वेस्ट हो सकता है. सो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे ले रहे हैं, प्लांट से फूड ले रहे हैं. फाइन. खुद अपना प्रिपेयर नहीं कर रहे, दूसरों से फूड न्यूट्रिशन जो है वो एब्सॉर्ब कर रहे हैं. नाउ द सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन अंडर हेट्रोट्रॉफ इंक्लूड parasitic nutrition. And what is happening here the organisms obtain their nutrient directly from अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म से डायरेक्टली न्यूट्रिएंट गेन करने का काम कर रहे हैं. तो दोज ऑर्गेनिजम्स हु ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट डायरेक्टली फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैरासाइट. फाइन. नाउ द अदर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम होम दे आर टेकिंग द न्यूट्रिएंट, वो अदर ऑर्गेनिज्म जिससे डायरेक्टली न्यूट्रिशन ले रहे हैं, वो अदर ऑर्गेनिज्म आपका कहलाता है होस्ट. क्या कहलाता है होस्ट. वन मोर पॉइंट, दे नेवर तो वी आर नॉट गोइंग टू से, दे स्लोली किल देयर होस्ट. ये अपने होस्ट को धीरे धीरे किल करते हैं. और इसके अंदर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक इन प्लांट्स इफ वी आर सेइंग, तो प्लांट्स के अंदर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल है विच इज कॉल्ड कस्क्यूटा. फाइन. कस्क्यूटा इज अ स्टेम प्लांट है, जिसे हम अमरबेल भी कहते हैं. ये एक स्टेम पैरासाइट है, यानी दूसरे प्लांट की स्टेम से न्यूट्रिशन लेने का काम करता है. तो इसे कॉमनली हम अमरबेल के नाम से भी जानते हैं हिंदी में. तो अमरबेल और कस्क्यूटा इज अ प्लांट विच इज अ स्टेम पैरासाइट, यानी दूसरे होस्ट की स्टेम से नरिशमेंट लेने का काम करता है. इसी तरह में भी आपने कभी सुना हो रेफ्लिशिया, सबसे बड़ा फ्लावर है रेफ्लिशिया, एंड स्टिंगी ऑर्डर होता है, बहुत गंदा स्मेल आता है इसका. एंड एलिफेंट के थ्रू पॉलिनेट होता है, तो इनका जो पॉलिनेशन करवाते हैं वो एलिफेंट्स कराते हैं. तो सबसे बड़ा फ्लावर है रेफ्लिशिया, एंड दिस रेफ्लिशिया इज ऑल्सो अ रूट पैरासाइट. ये एक रूट पैरासाइट है. सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सर्टेन प्लांट, कस्क्यूटा एंड रेफ्लिशिया, दोनों प्लांट के एग्जाम्पल है. अगर इसी तरह मैं बात करूं, आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स, तो ये जर्नल एग्जाम्पल है. आपने सुना होगा जैसे टिक्स होते हैं ऑन डॉग की बॉडी पर, या फिर हमारा एग्जाम्पल लेते हैं लाइस ऑन ह्यूमन. हमारे सर पे हो जाती है ना, जुएं हो जाती, तो वो भी क्या कर रही है, हमारा ब्लड सक कर रही है, वो डायरेक्ट हमसे क्या कर रही है, न्यूट्रिशन ले रही है. और अगर वो हमारा ब्लड सक कर रही है तो कहीं ना कहीं हमें क्या कर रही है, वीक कर रही है. तो यहाँ पर आपके पैरासाइट जो है डायरेक्ट किसी लिविंग होस्ट से नरिशमेंट लेने का काम करते हैं. फाइन. सो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट. थर्ड टाइप ऑफ हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज योर holozoic nutrition. Holozoic nutrition is what? Here the organism take the whole food. कि यहाँ पर organism पहले पूरा food जो है वो engulf करता है, या फिर हम कहते हैं अंदर लेता है बॉडी के, and फिर inside the body उसका क्या होगा, digestion होगा. So what is holozoic mode of nutrition? Here the organisms obtain food as a whole यानी पूरे फूड को as it is वो खाते हैं, and then digest
them inside the body. वो उसे बॉडी के अंदर इनसाइड जो है डाइजेस्ट कर रहे हैं फॉर रिलीजिंग द न्यूट्रिएंट. और फिर बॉडी के अंदर अगर डाइजेशन हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो बॉडी के अंदर ही न्यूट्रिएंट रिलीज होंगे और वो न्यूट्रिएंट बॉडी के अंदर ही यूटिलाइज हो जाएंगे. फाइन. So such type of mode of nutrition is shown by amoeba, which we are going to talk in detail, and human. This also we take in detail. Fine. So holozoic mode of nutrition is shown by amoeba and human. हम पूरा फूड पहले खाते हैं, है ना. हमने रोटी खाई, उसके बाद उसका डाइजेशन करे कि हमारे टीथ ने पहले ग्राइंडिंग की, फिर स्टमक में गया, वो स्टमक में डिग्रेड हुआ, इंटेस्टाइन में गया, वहां डिग्रेड हुआ, एब्जॉर्ब हुआ. तो जहां पर ऑर्गेनिज्म खाना अंदर ले ले फिर डाइजेशन करे. अगर हम बात करें होलोजोइक और सैप्रोफाइट में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर पहली चीज तो हम एज अ फूड पूरा एंगल्फ करें फिर डाइजेशन कर रहे हैं, बट यहाँ पर उसका डाइजेशन पहले हुआ. इन्होंने क्या किया, एंजाइम रिलीज कर दिया, पहले उस ऑर्गेनिक मैटर का डाइजेशन कर लिया है, फिर सिंपल न्यूट्रिएंट को बॉडी में एब्सॉर्ब किया है. तो यहाँ पर हमसे रिवर्स चलता है, उल्टा चल रहा है. ठीक है. सो दिस इज द टाइप ऑफ हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन. नाउ विल टॉक इन डिटेल अबाउट holozoic nutrition M. Holozoic nutrition M. Next topic is holozoic nutrition M. amoeba. Fine. Holozoic nutrition हम यहाँ पर बात कर चुके हैं. Definition. So definition remains the same, that animals first engulf. If we have to define it, it is what? Organism engulf food as a whole, and then intracellular digestion, and then digestion, or we can say simple, and then digestion take place inside the body. अभी हमने बात की. तो यहाँ पर एज अ होल फूड एंगल्फ किया जाएगा और फिर डाइजेशन कहाँ होगा, बॉडी के इनसाइड होगा. Now if we talk about diagrammatically, this question is sometimes asked in one marker, that what is holozoic mode of nutrition, or it could be asked in 2 marks where you have to show it diagrammatically. So diagrammatically if we talk about the mode of nutrition in amoeba, so amoeba आपको सबको पता है कि amoeba क्या है. This amoeba is irregular shape organism. So इस तरह से आपको दिखेगा, irregular shape and having a plasma. कभी भी हम सेल की बात करें तो उसके अंदर 3 कंपोनेंट तो होना जरूरी है, कि उसका क्या हो, न्यूक्लियस हो, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो एंड साइटोप्लाज्म हो. अमीबा के केस में साइटोप्लाज्म 2 रीजन में डिवाइडेड होता है, जिसे हम जेल और सोल कहते हैं. तो आउटसाइड, और ये भी इंटरचेंज होता रहता है. कभी आउटसाइड आपको इस तरह से दिखेगा कि यहाँ पर डेंस साइटोप्लाज्म है और इनसाइड आपका कम है, एंड आफ्टर सम टाइम आपको रिवर्स दिखेगा, इनसाइड डेंस है और बाहर कम है. तो ये इंटरचेंजेबल फॉर्म होती है इसकी साइटोप्लाज्म की, कि 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है और दोनों पार्ट इंटरचेंज होते रहते हैं ड्यूरिंग द मूवमेंट. फाइन. नाउ we'll talk about the next point, like if this amoeba saw somewhere the food particle, अगर इसे कहीं पर क्या दिखे, फूड पार्टिकल दिखे, तो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कुछ सेंसिटिव सेल होते हैं, एंड these सेंसिटिव सेल सेंसिटाइज दैट नियर बाय कुछ फूड पार्टिकल प्रेजेंट है. आफ्टर
आफ्टर सेंसेसिंग दैट द पार्टिकल, यहाँ पर कोई फूड पार्टिकल प्रेजेंट है, सेंस करने के बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है अमीबा की, ये उस फूड पार्टिकल की तरफ एक्सटेंड होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात क्या की कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कुछ sensitive cell होंगे and those sensitive cell they sense the food particles present in the nearby environment, and after sensing the food particle this plasma membrane move towards that food particle, and you will see कि यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन उस फूड पार्टिकल की तरफ मूव होने लगता है और इस तरह का एक फॉल्स फुट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो यहाँ पर इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन उस फूड पार्टिकल की तरफ क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, एंड दे फॉर्म अ फॉल्स फुट लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड सूडोपोडिया। ठीक है, तो इस फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में सेंसिटिव सेल ऑफ प्लाज्मा membrane detect the food particle present in nearby environment। नियरबाय एनवायरमेंट में जो फूड पार्टिकल है उसे डिटेक्ट करने का, सेंस करने का काम हुआ। नाउ इन द सेकेंड स्टेप व्हाट इज हैपनिंग, falls foot like structure starts to appear towards फूड पार्टिकल, कि फूड पार्टिकल की तरफ आपका क्या फुट लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होने लगेगा। फाइन, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, these pseudopodia or false fit they extend and reach up to this food particle and they remains elongating till they completely engulf this food particle, कि फूड पार्टिकल के अराउंड ये आपका इलोंगेट होते रहते हैं और ये तब तक इलोंगेट होते हैं अंटिल दीज सूडोपोडिया दे मीट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्या हो जाए, मीट हो जाए। तो यहाँ पर थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, सूडोपोडिया elongates and met with each other to surround the food particle completely। फूड पार्टिकल को कंप्लीटली सराउंड करने के लिए ये एक दूसरे के तरफ क्या करते रहेंगे, मूव होते रहेंगे। ठीक है, ये एक दूसरे की तरफ क्या होते रहे, मूव होते रहे। फाइन, एंड अल्टीमेटली अ फूड वैक्यूल इज फॉर्म इनसाइड दिस अमीबा, और अल्टीमेटली क्या बन गया, अल्टीमेटली फोर्थ स्टेप में क्या हुआ, यहाँ पर फूड वैक्यूल इज फॉर्म। फाइन, सबके अंदर आपको साइटोप्लाज्मिक कंटेंट एज इट इज रखना है। देयर ऑल्सो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इज प्रेजेंट, देयर ऑल्सो द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इज प्रेजेंट। सो यहाँ पर आपका क्या है, अब फूड वैक्यूल फॉर्म हो चुका है। Now this amoeba have certain enzyme and these enzymes enter into this food particle। So यहाँ पर एंजाइम जो है वो आपका एंटर करेंगे फूड पार्टिकल में and degrade this food particle completely। So in the fifth step what is going to happen, enzymes of amoeba degrade the
degrade the food particle. Enzymes of amoeba degrade the food particle and digest it to release simple न्यूट्रिएंट. ठीक है, तो यहाँ पर डाइजेशन के बाद लास्ट स्टेप, इन द लास्ट स्टेप व्हाट विल हैव टू शो आफ्टर डाइजेशन. अमीबा के अंदर क्या है, यहाँ पर आपका ये फूड तो डाइजेस्ट हो गया. अब इसको हम टूटा टूटा दिखाते हैं. फूड डाइजेस्ट हो गया एंड न्यूट्रिएंट्स आर released in the body of amoeba. So this is the last diagram and this is your complete holozoic mode of nutrition that is shown by amoeba. Okay, so this is asked in your 2 mark. In the next session we'll talk about nutrition in the human. Okay, thank you.